موضوع جو ہے آج بڑا یونیک موضوع ہے جو کہ بہت ہی کم جو ہے اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ علماء کرام یا ٹیچر حضرات یا دوسرے جو ہے مفتی حضرات اس بارے میں بہت ہی کم بات کرتے ہیں۔ موضوع جو ہے وہ آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ وہ کس لحاظ سے ضرورت ہے؟ جیسے ہی میں موضوع بیان کروں گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہماری ضرورت ہے۔ ہر ایک بندے نے فوت ہو جانا ہے، ایک دن فوت ہو جانا ہے، ہر ایک پہ وقت آتا ہے اور ہر ایک کو جو ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ خدا یاد آتا ہے، پہلے نہیں آتا۔ جب مصیبت آتی ہے تب یاد آتا ہے، تب بھی جو ہے ہم کہتے ہیں ہائے اماں ہائے ابا، یعنی کہ ہم جو ہے تب بھی جو ہے اللہ کو یاد کم ہی کرتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے۔ موضوع جو ہے اسی کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طلب جو ہے ہمیں کتنی ہے۔ اچھا، تین طبقات ہیں، ہم تین طبقات کی بات کر رہے ہیں کہ تین طبقے کون کون سے ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ دنیا دار طبقہ ہے، کیا وہ اللہ کی طلب کر رہا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ دوسرا طبقہ جو ہے علماء کرام کا طبقہ ہے۔ علماء کرام میں جو ہے مفتیان کرام جتنے بھی جو ہے وہ اس طبقے میں آ جاتے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طلب کر رہے ہیں یا وہ لوگوں کو جو ہے اس طرف لے کے جا رہے ہیں، اللہ کی طلب کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ان کی تقریروں کا مقصد جو ہے یا لب لباب جو ہے یا موضوع بحث جو ہے وہ اللہ کی طلب ہے؟ کیا وہاں پر بیٹھ کر جو لوگ ہیں وہ اللہ کی طلب کی طرف آتے ہیں؟ ان کی تقریر سن کے جمعے میں یا مختلف بیانات میں ان کی تقریر سن کے جو ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اللہ سے محبت کی؟ کتنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں؟ یہی سوالات کے جو ہے جوابات میں تلاش کرتے ہیں۔ اور اللہ والے کون ہوتے ہیں جی، اس کے بارے میں بات کریں کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں اور جو اللہ کی طرف نہیں کرتے وہ کون ہوتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں دنیا دار طبقہ۔ اب دنیا دار طبقہ کرتا کیا ہے جی؟ دنیا دار طبقہ جو ہے کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کی تعریف میں بیان کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ذرا۔ دنیا دار طبقہ جو ہے وہ جو بھی کام کرے گا وہ دنیا کھاتا کرے گا۔ ایک بات، اگر وہ جو ہے طاقت کا استعمال کرے گا، اگر نوکری حاصل کرے گا، اگر علم حاصل کرے گا، اس کا مقصد جو ہے وہ دنیا کا فائدہ ہوگا، مال و دولت ہوگا، کوٹھی کار ہوگی، بنگلہ ہوگا، اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوگا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا، ان کا مقصد جو ہے فقط جو ہے اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، ان کا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، ان کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت سے راضی کرنا ہوتا ہے۔ دنیا داروں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال و دولت حاصل کرنا۔ اگر وہ اپنے گھر میں جو ہے کسی جو ہے آیات، مختلف آیات اگر پڑھاتے ہیں یا کوئی اور پروگرام اس طرح کا کرواتے ہیں یا کوئی مولوی کرام بلاتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی مقصد ہوتا ہے، گھر میں خیر و برکت ہوگی، کیا یہ دنیاوی مقصد نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ جو ہے خیر و برکت کے لیے کسی سے دعا کرواتا ہے تو کیا دنیاوی مقصد نہیں ہے؟ کوئی بندہ جو ہے کسی جو ہے سے تعویذ لے کے آتا ہے یا کسی سے پانی کا کروا کے اپنے گھر کے لیے لے کے آتا ہے تو کیا وہ دنیاوی مقصد نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کے گھر میں جو ہے ناچاکی ہے، اس میں گھر میں جو ہے کوئی مسائل چل رہے ہیں، اس کو شک ہے کہ میرے گھر میں جو ہے جادو ٹونے کا اثر ہے، کیا وہ اگر کسی بابے کے پاس جائے گا کیا وہ یہ کہے گا کہ مجھے اللہ چاہیے؟ اس سے کیا طلب کرے گا؟ اس سے یہ کہے گا کہ میرے گھر میں جو ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے، مجھے اس کے لیے جو ہے دعا کر دیں یا مجھے اس کے لیے جو ہے کوئی تعویذ دے دیں جس سے جو ہے یہ میرا مسئلہ ہو جائے۔ کیا یہ مقصد نہیں ہوتا؟ پھر دنیا دار ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم جو ہے اگر فرض کرتے ہیں کوئی بندہ ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کو رات کی ڈیوٹی کے لیے جو ہے آپ کو 700 یا 800 روپے جو ہے وہ رات کے ملے گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ کو اجرت دی جائے گی رات کی ڈیوٹی کی، ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، وہ ساری رات جاگے گا، ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا کرے گا، یہ دنیا دار طبقہ ہے۔ اور اگر اسے یہ کہا جائے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، چند رکعتیں ہیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ 15 سے 20 منٹ، اس کے لیے نیند خراب نہیں کرے گا، لیکن اس پیسوں کے لیے جو ہے دنیا دار طبقہ کیا کرے گا؟ اس پیسوں کے لیے ساری رات جاگے گا، چاہے ایک رات 10 راتیں ہوں، وہ پیسے کے لیے جاگے گا۔ اب یہ شاپس والے لگا لیں، جتنے بھی شاپس ادھر پڑی ہوئی ہیں، کیا 12 بجے سے پہلے بند ہو جاتی ہیں؟ نہیں بند ہوتی۔ 12 بجے کے بعد جو ہے جیسے ہی سلسلہ 1 2 3 کا ہوتا ہے وہ تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تہجد کی اذان ہوتی ہے تب دکانیں اکثر بند ہوتی ہیں، اکثر تو ساری رات کھلی رہتی ہیں۔ کیا وہ اللہ کرتے ساری رات؟ پیسہ کماتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، یہ ہے دنیا دار طبقہ۔ اگر چند پیسے نکالیں گے اپنے مال سے تو ان کا مقصد یہی ہوگا ہمارے مال میں برکت پڑے گی، ہم اللہ سے تجارت کر رہے ہیں جی، یہ حدیث سنائیں گے، ہم اللہ سے تجارت کر رہے ہیں،
10 दे के 10 इधर मिले 70 आखिरत, ये अल्लाह से तजारत है। अब ये चीज जो है, ये सोच लोगों की कैसी बन गई, अजीब सोच बन गई है कि मकसद हमारा अल्लाह की रजा हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद क्या रह गया, दुनिया को मकसद। अगर आप लोग जो है स्टडी कर रहे हैं, कोई एफएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई एमए एमएससी कर रहा है, तो क्या उसका मकसद अल्लाह का हासिल करना है? क्या उसका मकसद जो है अल्लाह की मार्फत हासिल करना है? नहीं है। क्यों नहीं है? उसका मकसद जो है शुरू से बना दिया गया है कि तुम्हारा मकसद जो है वो क्या है, स्टेटस हासिल करना। तुम्हारा मकसद क्या है, नौकरी हासिल करना। नौकरी से क्या मिलेगा? नौकरी से पैसा मिलेगा, आसाइशें मिलेगी नौकरी से। ये तमाम चीजें कौन मानता है? दुनियादार मानता है। उकबा जो है, उकबा कौन होते हैं जी? उलमा इकराम जो अल्लाह को जो है वो तलब करते हैं या नहीं करते, अब उसकी बात कर लेते हैं। अब उलमा इकराम की जितनी भी तकारीर होती हैं, अब उसमें उसको अगर आप गौर से सुने तो क्या आपके दिल में वो जो मैंने पहले सवाल उठाए थे वो आपके दिल में पैदा होते हैं? क्या आपके दिल में जो है ये जज्बा पैदा होता है कि मैं जो है सुबह निकलूंगा और मैं खुद भी जो है अल्लाह को याद सारा दिन करूंगा और जो दूसरों को भी प्रचार करूंगा? क्या ये मकसद होता है उनका? अगर उनका तकरीर का मकसद ये हो तो आपके दिल में ये ख्याल पैदा होना जरूरी है, इंसानी नेचर है। अगर अल्लाह के लिए कोई तकरीर करेगा या अल्लाह का मकसद जो है वो बयान करेगा कि अल्लाह का मकसद क्या है दुनिया पर इंसान को भेजने का, तो मैं नहीं समझता कि उसके दिल में अल्लाह की जात या उसकी याद ना आए। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे सारा दिन याद करो, हर लम्हे याद करो। क्यों नहीं करते? क्या ये आयात का तर्जुमा इनके ज़हन में नहीं आता? क्या कलम उनके ज़हन में नहीं आता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान का जो है उसके अंदर जो है, एक इंसान के अंदर वो क्या है, एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो सीधा हो जाए तो इंसान सीधा हो जाता है। क्या इस तरफ तो नहीं आती? क्या इस पर इस्लाम लागू नहीं होता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इस्लाम लागू किया है। कलूब के अंदर जो है वो टेढ़ापन होता है, ये तो नहीं कहा दिमाग के अंदर टेढ़ापन होता है। क्या उसके कलूब के अंदर दिल में जो आपका जो है कलूब मतलब दिल, उसके अंदर जो है क्या इस्लाम नहीं उतारना? क्या अल्लाह का नाम नहीं उतारना? क्या अल्लाह की मोहब्बत उस दिल के अंदर नहीं उतारनी? वो कौन उतार रहा है? क्या ये उतार रहे हैं? अब इनकी तकरीर का मकसद क्या होता है जी? तकरीर का मकसद जेब में क्या होता है जी? जितनी भी इंतजामिया है, अगर मैंने सख्त तकरीर कर दी, सख्त तकरीर की, तो क्या होगा? ये मुझे पैसे नहीं देंगे, ये जो साल के बाद मुझे दाने मिलते वो नहीं मिलेंगे, गंदा मिलती वो नहीं मिलेंगे, जो मुझे तनख्वाह देते हैं वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मकसद ये हो गया। पेट को बचा रहे हैं अपने, इसलिए जो है दीन हक बयान नहीं करते, इसलिए लोगों को अल्लाह की तरफ नहीं लेके जा रहे। क्या शरीयत का मकसद अल्लाह की तरफ लेके जाना नहीं था? क्या शरीयत का मकसद मरफ़त इलाही नहीं है? अगर मरफ़त इलाही नहीं है तो ये फिर क्या कर रहे हैं? अगर शरीयत का मकसद मरफ़त इलाही है तो फिर ये क्यों नहीं मरफ़त इलाही की तरफ आते? ना खुद आते हैं ना लोगों को लेके आते हैं। बताए ना कि अल्लाह की पहचान क्या है, सवाल से किया इनसे किया जाए तो ये बताए ना कि उसकी क्या पहचान है, अल्लाह की पहचान बताए जी। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला ने सारी कायनात बनाई है, ये तो सिफात हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे उतरेगी दिल में, बताने से कासिर है। ईमान दो चीजों की जो है वो बुनियाद पर जो है ईमान आपका मुकम्मल होता है। दो चीजों की बुनियाद पर, एक कि इंसान दिल से जो है वो दिल से उसको कबूल करे, दिल से कबूल करे। ये किसने किया? क्या ये हो रहा है दिल से कबूल? जुबान से इकरार करते हैं। यानी कि दूसरा जो पॉइंट है दिल से कबूल करने वाला, ये आजकल जो है नहीं होता। क्या आप जो भी अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्या आपके जहन में जो है वो जो चीज आती है आपके दिल में भी कोई आती है? अक्सर लोगों से मैंने यही सुना है कि मौलवी साहब दुआ लंबी कर देते हैं। क्यों करते हैं? वो क्यों ऐसा कहते हैं? उनका दिल तंग होना शुरू हो जाता है। उनका जिस्म नमाज पढ़ रहा है लेकिन उनका दिल हजूरी में नहीं है। दिल हजूरी में हो, अल्लाह की याद में हो, तो कैसे दिल गाफिल होगा और कैसे पता चलेगा हमारे आगे से कौन गुजर रहा है और पीछे से कौन गुजर रहा है? एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, उसके आगे से एक औरत गुजरी, उसको उसके जो है शोहर ने तलाक दे दी। अब वो गुजर गई, उसने जल्दी से नमाज पढ़ी, उस औरत को आवाज दी कि तुम मेरे आगे से गुजर गई, तुमने मेरी नमाज तोड़ दी। अब उसने तो शरीफ मसला बताया कि तुम आगे से नहीं गुजरना चाहिए था। उसने कहा कि मैं तो अपने जो मेरा खामद है, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जो है मुझे खबर ही नहीं हुई कि मैं कब जो है आगे से गुजर गई, मुझे नहीं पता चला। तो तुम कैसी नमाज पढ़ रहे हो? किसकी नमाज पढ़ रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम जो है नमाज किसकी पढ़ रहे हो, तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम हजूरी में नहीं हो, तुम्हें इर्द गिर्द का ख्याल है कि कौन आगे से गुजर रहा है, पीछे से गुजर रहा है। तुम्हारा ख्याल आसपास है। अगर तुम्हारा ख्याल आसपास है तो तुम अल्लाह की तरफ कैसे आ रहे हो? तुम तो कहते हो मैं हाजिर हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, हाजिर हूं।
तो हाजिर ऐसे होते हैं, ज़हन में कुछ है, अमली तौर पर कुछ है। तो ये तबका जो हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या अपना जो है अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? क्या वो जो है अल्लाह की तरफ बुलाने में कामयाब हुए हैं? कितने लोग जो हैं उनके कहने पर अल्लाह की तरफ आए हैं, धरने में आए हैं, कहने पर, मुख्तलिफ जो है जलूस में जाते हैं लोग उनके कहने पर। कितने नमाजी बना दिए इन्होंने? कोई नहीं। अगर नमाजी बना है तो अल्लाह वाले कितने बने? अल्लाह वाले तो ये तमाम दौलत और तमाम जितनी भी जायदाद इनसे तो वारिस होते हैं। अल्लाह वाले को अल्लाह ही चाहिए होता है, वो किसी और चीज की तलब नहीं करते। जो अल्लाह की तलब करता है उसमें से जो है दुनिया की तलब निकल जाती है, दुनिया की तरफ बिल्कुल निकल जाती है उसके दिल से, वो बेजार हो जाता है दुनिया से। ये कैसे जो है वो अल्लाह को तलब करने वाले हैं? ये कैसे अल्लाह वाले हैं जो ना अल्लाह की तरफ बुलाते हैं ना खुद जाते हैं? मकसद उद्दीन का अल्लाह की तरफ बुलाना था, अल्लाह की तरफ लेके जाना था, अल्लाह की बारगाह में कामयाबी दिलानी थी, कामयाबी वो। और ये तलब करते जन्नत, ये अमल करते जन्नत के लिए। क्या अमल हमें जन्नत के लिए करने चाहिए? जब तक जो है आप अल्लाह को खुश नहीं करेंगे, अल्लाह को राजी नहीं करेंगे, जन्नत कैसे मिलेगी आपको? जब आपका अमल जो है अल्लाह को राजी करने वाला नहीं होगा, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, वो मकाम जन्नत में नहीं हासिल कर सकेंगे। अगर फर्ज करते हैं आपके अमल नेक हैं, आप ठीक काम किया है, आपने कामयाबी हासिल कर ली है, आपको जन्नत मिल गई, लेकिन अल्लाह तो नहीं मिला, जो सारे जहानों का मालिक है वो नहीं मिला, उसकी तलब आपने की, वो तलब के बगैर नहीं मिलेगा। आपको जो है मौत का बानी है ये आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी औलाद कितनी होगी आपकी किस्मत में लिखा है, नेक होंगे बद होंगे हदीस के मुताबिक आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, रोजी कितनी मिलेगी आपकी किस्मत में लिखा है। लेकिन ये चीज तलब करने से नहीं, तालब बनेंगे तो मिलेगा, अदरवाइज ये कुछ नहीं मिलेगा। लाहासिल होगा, आपके हर अमल लाहासिल है, आपका हर अमल जो है बेफायदा है, बेमकसद है, जब तक आप अल्लाह की तरफ नहीं करेंगे। जब तक आप इस तरफ नहीं आएंगे, अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे, तो ये लोग आपको गुमराह करते रहेंगे। कोई कहेगा इधर चलो ये हिदायत का रास्ता है, कोई कहेगा इधर चलो ये हिदायत का रास्ता है। हिदायत का रास्ता एक ही है जो अल्लाह की तरफ जाता है, वो अल्लाह की वालों से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। और अल्लाह वाले वही होते हैं जो तलब नहीं करते जहान की। जिस आलिम की तलब जो है वो पेट से शुरू होती है, वो अपनी पेट और इस जान के जो है दुख से और इस जान के खौफ से कि मुझे हुकूमत मार ना दे और ये मेरा खाना पीना बंद ना हो जाए, इस खौफ से, ये दो खौफ है, इस खौफ से जो है हक बयान नहीं करता, तो वाले में क्या वो हिदायत वाला है? क्या उसकी तकरीर सुन के आपके ज़हन में अल्लाह का ख्याल आता है, अल्लाह की याद आती है, आप रोते हैं अल्लाह के लिए कि अल्लाह मुझे मिल जाए? है किसी की तलब आज? जब तलब ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? दुनिया मिलेगी, वो मिलती जा रही है, वो बेहिसाब मिलती जा रही है। ठीक है जी।